A very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So you know from the previous few classes we are continuously studying the chapter that is theory of demand. So in this chapter we have already discussed the meaning of the what is the meaning of the demand, what are the law of demand, kinds of the demand. So in which we have discussed the price demand, income demand and the gross demand. After that there are also several kind of demand: derivative demand, joint demand, composite demand and so on. After that we have started to discuss the explanation of the law of demand. So explanation of the law of demand we have discussed in the two aspects: individual demand function or the market demand function, right? So individual demand functions means simply it shows the demand which is demanded by the single individual, right, and or the individual household. But when we talk about the market demand, it means the demand which is done by all the consumers who are present in the market. Okay. After that we have discussed the exceptions to the law of demand. So there are different exceptions to the law of demand, like given goods, ignorance, article of distinctions, goods expected to become costly, necessities or other expectations. Next topic that we have discussed, that is causes of the negative relation between the price and the quantity demanded, or the why does demand curve slopes downward to the right. So there are different reasons. The first reason is law of diminishing marginal utility. Second one is substitution effect. Third is income effect. Fourth one is size of consumer group or the market size. And the last one is alternative use of the commodity. Okay. So after that we have started the demand functions, factor affecting the demand or the determinants of the demand. So it is also discussed in the two functions: individual demand functions and the market demand function. So individual demand function, we have discussed that demand is the function of the price of the commodity, income of the consumer, price of the related goods, taste and preference of the consumer, and expectation about the price in future. And in the market demand function, so three extra factors added, that is distribution of income, season and the climate, and the population. Okay. So we have already discussed all these things one by one with the help of the example, right? So in today's class we are going to start another topic and the last topic of this chapter, that is the changes in the quantity demanded and the change in demand. So firstly we will deal with the change in the quantity demanded and then we deal with the change in demand. So without getting any delay, let's get our class. Okay, so the topic is here, that is change in quantity demanded. Change in quantity demanded. Okay, so change in quantity demanded is also known as the movement along same demand curve. Movement along same demand curve. Okay, so change in quantity demanded, or we can also say that the movement along the same demand curve. So change in quantity demanded or the movement along the demand curve, it refers to the change in quantity demanded is represented by the movement along the demand curve. ठीक है, movement किस में हो रहा है? Same demand curve में हो रहा है. So this is because, ये इसलिए हो रहा है because change in demand is caused by the change in price of the good. Because change in demand, जो भी demand हो रही है वो क्यों हो रही है? Because of the change in the price of the good, other things being the constant. ठीक है,
और सारे फैक्टर्स को हम यहाँ पे क्या करेंगे, कांस्टेंट करेंगे. हियर ओनली दी वी डिस्कस द रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांड. ओके, तो यहाँ पे रिलेशन किसका पढ़ेंगे, प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड का डिस्कस करेंगे रिलेशन, एंड अदर थिंग रिमेनिंग दी कांस्टेंट. सो चेंज इन डिमांड, change in demand is caused by the change in price, other things remaining equal. अदर थिंग्स यहाँ पे क्या होंगे, अदर थिंग्स होंगे यहाँ पे अदर्स फैक्टर. अदर फैक्टर मीन्स प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, पॉपुलेशन, एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइस, सीजन एंड द क्लाइमेट एक्सेट्रा. ओके, सो अदर थिंग रिमेनिंग इक्वल. ओके, सो हियर वी विल डिस्कस ओनली द रिलेशन बिटवीन द डिमांड एंड द प्राइस. और सारे जो भी फैक्टर्स होंगे वो यहाँ पे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे. ठीक है, so movement is always along the same demand curve. Okay? So movement is always on same demand curve. ठीक है, movement किस पे होगा, movement same demand curve पे होगा, which means that no new demand curve is drawn. Okay, so which means no new demand curve is drawn. ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि मूवमेंट हमेशा किस पे होगा, सेम डिमांड कर्व पे होगा, जिसका ये मतलब है कि कोई भी न्यू डिमांड कर्व क्या होगी, ड्रॉन नहीं. ठीक है, मूवमेंट इज ऑलवेज ऑन सेम डिमांड कर्व, विच मीन्स नो न्यू डिमांड कर्व इज ड्रॉन. कोई भी न्यू डिमांड कर्व यहाँ पे ड्रॉन नहीं होगी. ठीक है, जो भी है वो आपका ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहा है डिमांड कर्व, उसी पे ही सारा होगा. नेक्स्ट आता है दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑफ टू टाइप्स. जो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हो रहा है इट इज ऑफ टू टाइप्स. So change in quantity demanded, it is our heading. So change in quantity demanded is of two types. Okay. So first यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट होगा दैट इज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड. एंड सेकेंड वन इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. ओके, सो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मीनिंग होता है कि डिमांड में चेंज हो रहा है. डिमांड में चेंज क्यों हो रहा है, बट ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस. कि प्राइस में चेंज होने पे उसके डिमांड में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. ठीक है, ओके. अब मतलब यहाँ पे क्या है, और अदर्स फैक्टर्स जो होंगे वो यहाँ पे क्या होंगे, कांस्टेंट. ठीक है, तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑफ टू टाइप्स. ठीक है, जो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हो रहा है वो टू टाइप्स का है. पहला है दैट इज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड द सेकेंड वन इज दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. ठीक है, टू टाइप्स का है. सो फर्स्टली वी विल डील विद द एक्सटेंशन ऑफ डिमांड. कि एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्या होता है. ठीक है, सो पुट डाउन द हेडिंग दैट इज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड.
extension of demand. Okay, extension of demand. So देखिए क्या कहता है, extension of demand refers to rise in demand of a commodity due to fall in its price, assuming that others factor remaining the constant. ठीक है, इसका मतलब होता है कि राइज किसमें हो रहा है, डिमांड ऑफ द कमोडिटी में राइज हो रहा है. क्यों? ड्यू टू फॉल इन इट्स प्राइस. एक्सटेंशन का मतलब क्या हो गया, एक्सटेंशन मतलब एक्सटेंड करना. किसमें एक्सटेंशन हो रहा है, डिमांड में एक्सटेंशन हो रहा है. और डिमांड में एक्सटेंशन कब होता है, व्हेन देयर इज फॉल इन इट्स प्राइस, जब भी प्राइस में फॉल करता है. सो राइज इन इट रेफर्स टू राइज इन डिमांड, राइज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, of a commodity due to fall in its price, due to fall in its price. ठीक है, due to fall in its price, assuming that other factor remaining the constant, assuming that other factors remaining the constant. ठीक है, सो इट इज शोन बाय द मूवमेंट फ्रॉम अपर पॉइंट टू लोअर पॉइंट. मतलब सेम डिमांड कर्व पे अपर पॉइंट से लोअर पॉइंट पे ये मूवमेंट होगा. ठीक है, ऑन द सेम डिमांड कर्व. ठीक है, सो मूवमेंट फ्रॉम अपर पॉइंट टू लोअर पॉइंट on same demand curve. Okay, so movement क्या हो रहा है, movement from upper point to lower point on same demand curve, उसी same demand curve में हो रहा है. So first of all let's take one table. एक टेबल लेते हैं. ठीक है, उस टेबल के साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, उस टेबल में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, टेबल को बनाएंगे, उसको ड्रॉ करेंगे एंड देन एक्सप्लेन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक वन टेबल. सो हियर वी विल टेक प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. ओके, तो प्राइस है 10 और 5. 10, 5, क्वांटिटी क्या है 4 और 6. देखिए इसमें यही क्या है कि राइज इन डिमांड, डिमांड में क्या हो रहा है, राइज हो रहा है ड्यू टू फॉल इन इट्स प्राइस. प्राइस के फॉल होने पे प्राइस इज फॉलिंग फ्रॉम 10 to 5, सो डिमांड इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 4 to 6. डिमांड हमारी क्या हो रही है, वो 4 to 6 इंक्रीज हो रही है. राइट, सो लेट्स टेक एक डायग्राम बनाते हैं इस पे बेस्ड. सो हियर वी विल टेक क्वांटिटी डिमांडेड, हियर विल बी प्राइस. ठीक है, सो इट इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज O. सो वी विल टेक अ प्राइस 5 एंड 10. क्वांटिटी वी विल टेक 2, 4, 6. So when the price is 10, commodity demanded is 4. Okay, and when the price is 5, quantity demanded is 6. So we will got a 2 point and we will join it. So this is your demand curve and point A and point B. So यहाँ
प्राइस के डिक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज हो रही है। मतलब पहले जब प्राइस इतनी थी तो हम डिमांड इतनी कर रहे हैं, जैसे ही प्राइस हमारी कम हो गई तो हम डिमांड इतनी कर रहे हैं। तो हम लोग मूव कहाँ से किए, अपर पॉइंट से लोअर पॉइंट, मीन्स दिस टू दिस। ठीक है, हम लोग क्या किए, मूव किए ना अपर पॉइंट से लोअर पॉइंट में। ओके, सो ये क्या होता है आपका, दिस इज कॉल्ड दी एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। यही आपका क्या है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड होता है। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्या हुआ, राइज इन डिमांड ऑफ ए कमोडिटी, डिमांड कमोडिटी की राइज कर रही है ड्यू टू फॉल इन इट्स प्राइस, प्राइस में फॉल होने पे अदर फैक्टर रिमेनिंग दी कांस्टेंट। और सारे फैक्टर्स को हमने यहाँ पे क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। मूवमेंट कहाँ से हो रहा है, अपर पॉइंट से लोअर पॉइंट। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन है, extension of demand is illustrated in table with the figure. A consumer buys 4 unit at rupees 10 per unit. Consumer 4 unit को buy कर रहा है जब price 10 है। When price falls to rupees 5 per unit, जब price क्या है 5 per unit fall कर रही है, his demand rises to 6 unit. इसकी demand 6 unit पे rise कर रही है। So this is the extension of demand. इसी को क्या बोलते हैं, extension of demand. So it is shown by the downward movement in the diagram. मूवमेंट क्या हो रहा है, मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड बोलते हैं। So extension of demand is rise in demand of a commodity due to fall in its price, इसके प्राइस फॉल होने पे, और अदर फैक्टर्स हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, अदर्स फैक्टर्स रिमेनिंगली कांस्टेंट, अदर फैक्टर यहाँ पे कांस्टेंट रहेंगे। मूवमेंट फ्रॉम दी अपर पॉइंट टू लोअर पॉइंट, अपर पॉइंट से लोअर पॉइंट पे यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है ऑन द सेम डिमांड कर। डिमांड कर कोई भी उसमें चेंजेस नहीं होगा, डिमांड कर क्या रहेगी, सेम डिमांड कर रहेगा। ठीक है, देखिए कोई भी डिमांड कर हमारी राइट वर्ड ना ही लेफ्ट वर्ड शिफ्ट नहीं हुई, सेम डिमांड कर पे हम पॉइंट ए से पॉइंट बी को मूव कर दिए, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। सो लोअर पॉइंट टू अपर पॉइंट टू लोअर पॉइंट पे सेम डिमांड करके शिफ्ट हुआ। टेबल देखिए, प्राइस 10 to 5 हो रही, क्वांटिटी डिमांडेड इज increases 4 to 6. So it is downward from upper point to lower point. Movement from point A to point B. This is called the extension of demand. Now the next one is, that is contraction of demand. Okay. Contraction of demand. So okay, so contraction of demand refers to the fall in the demand of a commodity due to rise in its price. Contraction means क्या हो रहा है, आपको पता चल रहा है कि डिमांड क्या हो रही है, वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब कम हो रही है। ठीक है, सो डिमांड हमारी कम क्यों होती है, कब होती है, when the price of the any commodity rise. So fall in demand of a commodity, fall in demand of a commodity when price of a commodity, price of a okay, so fall in demand of a commodity when price of a commodity rise due to, or when a price of a commodity rises. ठीक है, डिमांड में फॉल हो रहा है, डिमांड फॉल क्यों करती है, बिकॉज ऑफ द
ड्यू टू राइज इन इट्स प्राइस, प्राइस में इंक्रीज होने से डिमांड क्या करती है, वो फॉल करती है. एंड अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल. ठीक है, अदर थिंग क्या होते हैं यहाँ पे, इक्वल होते हैं. सो इट इज शोन बाय द मूवमेंट फ्रॉम लोअर पॉइंट टू अपर पॉइंट. यहाँ पे लोअर से अपर इसलिए जा रहा है बिकॉज प्राइस हमारे यहाँ पे इंक्रीज कर रही है. ठीक है, सो इट इज शोन बाय मूवमेंट फ्रॉम लोअर पॉइंट टू upper point on the same demand curve, on the same demand curve. ठीक है, सो इसमें क्या शो कर रहा है, इट इज शोन बाय दी मूवमेंट. क्या हो रहा है, मूवमेंट फ्रॉम लोअर पॉइंट टू अपर पॉइंट ऑन द सेम डिमांड कर्व. ठीक है, सेम डिमांड कर्व में क्या हो रहा है, मूवमेंट शो हो रहा है. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं. ठीक है, तो फॉल इन डिमांड, डिमांड फॉल कर रही है. डिमांड फॉल क्यों कर रही है, बिकॉज प्राइस में राइज हो रहा है, प्राइस राइज हो रही है. तो जैसे ही प्राइस राइज होती है, डिमांड हमारी फॉल कर जाती है. और अदर्स जो भी फैक्टर्स हैं, दे ऑल आर बी कांस्टेंट. उन सारे फैक्टर्स को हम लोगों ने यहाँ पे क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है. ठीक है, फिर अब हम इसका एक टेबल लेते हैं. विद द हेल्प ऑफ टेबल वी विल एक्सप्लेन इट. टेबल, ठीक है, टेबल लेंगे प्राइस एंड दी क्वांटिटी. सो प्राइस यहाँ पे क्या है, 5 और 10. ठीक है, और क्वांटिटी क्या हो रही है, क्वांटिटी डिमांडेड इज इट इज गिवन इन यूनिट्स. क्वांटिटी डिमांडेड इज फॉलोइंग. कैसे, आपको पता है लॉ ऑफ डिमांड सेज, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड तो यही कहता है ना कि इफ द प्राइस ऑफ द एनी कमोडिटी इज इंक्रीजिंग, जैसे ही किसी भी कमोडिटी की प्राइस क्या होती है, वो इंक्रीज होती है, सो डिमांड ऑफ द दैट कमोडिटी फॉल्स. जो क्वांटिटी की डिमांड है वो क्या हो जाती है, फॉल हो जाती है. तो प्राइस इंक्रीज हुई है फ्रॉम 5 to 10, क्वांटिटी डिमांडेड इज 6 to 4. क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई है, वो फॉल कर गई है. ठीक है, ओके. सो एक इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं. दिस विल बी दी एक्स एंड इट विल बी वाई. क्वांटिटी डिमांडेड एंड दी प्राइस. ठीक है, प्राइस 5, 10, क्वांटिटी डिमांडेड हम लोग ले लेते हैं 2, 4 एंड 6. ठीक है, व्हेन द प्राइस इज 5, क्वांटिटी डिमांडेड इज 6. When the price is 10, quantity demanded is 4. ठीक है, so we get the 2 points, this and now we will join. हम इसको join कर देंगे. So we get the A and B. ठीक है, हम लोग यहाँ पे कौन से पॉइंट से किए हैं, मूवमेंट हो रहा है लोअर पॉइंट से. पहले आपकी प्राइस 5 थी तो क्वांटिटी इतनी थी, अब प्राइस हमारी 10 हो गई है तो हम लोग B से A पे हैं. तो मूवमेंट ऑन द सेम डिमांड कर्व फ्रॉम लोअर पॉइंट टू अपर पॉइंट. सो दिस इज कॉल्ड द contraction of demand. Okay, so table and the contraction of demand. Okay,
So this is all about your today's class.